Hi, Aryan. Hi, Shivangi. Hello, ma'am. So we'll solve the GA first. So I'll just share my screen. So this is the solution PDF. First question. Which of the following statements, chat, yeah. So you have done the graded assignment, right? Both of you? Yes, ma'am. Okay. No. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. And Aryan, Yeah, ma'am. you have completed the graded assignment? Yes, yes. Okay, that's great. So I think we can just, uh, I'll just ask if you have any doubts. Any questions? I'll confirm the answers. I'll just quickly do that. Yes. So first question is, which of the following are incorrect? To represent the share of a particular category, share is always shown in a this pie chart, right? This is used for share. The multiplication of total number of observations and relative frequency of particular observation should be equal to frequency of that observation. So it's just saying that, see, relative frequency is frequency upon total number. So if you just change it a bit, uh, particular observation should be equal to, yes. So n into r should be equal to frequency. Yes, if you take it over there, it's correct. So A is wrong till now. A is incorrect. Hi, Jasmine. Hi, Jasmine. Oh, both of you got disconnected. Yeah, so A is incorrect till now. So we have to find incorrect statements. B is correct because this is the equation. Relative frequency is equal to frequency of that observation upon number of observations. We just have to change it a bit and we'll go over there. So total into relative is equal to frequency of that observation. Mean can be defined for a categorical variable. No, that's false. How can you calculate the mean for a categorical variable? We can only calculate mode and median for it. So C and A are incorrect. Mode of a categorical variable is the widest slice. Perfect. This is right. So any doubts till now? A and C are the correct answers. You got the answer as A and C? Yeah, ma'am. Okay, great. Jasmine, are you there? Okay, no problem. So answer for the first one is A and C. Second question, if the exam is
for a total of 500 marks, then what is the aggregate distribution of marks in physics, maths, and biology? Android people. Is that you, Shivangi? मैम यस मैम एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है लाइक अच्छा, तो मेरा कट नेटवर्क हाँ, तो आप फर्स्ट एक बार क्वेश्चन में आंसर है ए एंड सी, बिकॉज ए और सी जो है वो इनकरेक्ट है। रिप्रेजेंट अ शेयर, तो शेयर जो होता है वो हमेशा पाई चार्ट से शो किया जाता है। ये पाई चार्ट है। हाँ इसमें अब अगर कोई पार्टी है, उसमें से सबका शेयर अगर मुझे शो करना है, तो मैं वो पाई चार्ट से शो कर सकती हूँ, बार चार्ट से नहीं। हम्म, तो ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बार चार्ट बोला हुआ है, पाई चार्ट होना चाहिए था। ठीक है। ओके डाउट एंड किसको? थर्ड वाला क्यों है हाँ, मीन जो है वो कैटेगोरिकल में मीन होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ इसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल का सम एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे, है ना? मतलब सम तो निकाल ही नहीं सकते कैटेगोरिकल वेरिएबल का, कि वो तो होगा कुछ नेम्स होंगे, जैसे ए। अंडरस्टूड मैम हाँ, तो इसमें सिर्फ मोड होता है एंड मीडियन होता है कैटेगोरिकल में। एंड डी इज ओके करेक्ट क्योंकि मोड तो सबसे फ्रीक्वेंट होता है, तो पाई चार्ट में सबसे बड़ी स्लाइस मोड की होती है। यस, तो इनकरेक्ट है ए और सी, इसलिए ए एंड सी आर द आंसर। ओके ओके। इफ एग्जाम is for total of 500 marks, what is the aggregate distribution of marks in physics, maths and biology? तो टोटल 500 मार्क्स का है एंड फिजिक्स की वेटेज है 35%। ये देखो, ये ऐसा वो पाई चार्ट भी दिया हुआ है। फिजिक्स इज ब्लू, 35%। अब मुझे बताओ हिंदी का क्या वेटेज है? 25 12%. हिंदी का, हिंदी तो 25% 12. 12. 12. हाँ 12। हिंदी ऑरेंज है तो हिंदी का तो 12 है। अच्छा ओके। ऑरेंज हाँ हाँ 12% मुझे हाँ, तो रेड है अच्छा मैथ्स बताओ। ग्रीन 18% यस, वेरी गुड। तो ऐसे पाई चार्ट दिया होता है एंड ये बहुत इजी है निकालना। फिजिक्स का अगर आपको निकालना है तो फिजिक्स में सिर्फ इतना करना है, 35% ऐसे लिखते हैं ना, और इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल मार्क्स से। टोटल है 500, तो ये मल्टीप्लाई करके 500 जो आंसर आएगा वो फिजिक्स के मार्क्स होंगे। इस तरह से सबके फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स पूछा है, तो ये निकालना है। हाँ अगर ऐसे करेंगे तो ये फिर, तो हाँ राइट, फिजिक्स का ऐसे आ जाएगा 175 कैलकुलेट करके, ये मैथ्स का आ जाएगा 90 एंड बायोलॉजी का आ जाएगा 50। तो पूछा हुआ है फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो इनको ऐड करके आंसर 315 आएगा। तो इस वाले का आंसर है 315। यही निकला था आंसर। यस मैम ओके, वेरी गुड। चलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग। अच्छा, कौन सा पाई चार्ट? ओके, आई थिंक किसी के बारे में होगा। हाँ उसी वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ। मैंने ए बी सी तीनों किया है एबीसी। मैं करेक्ट ए बी सी इसका आंसर तो सी एंड डी है। है चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे एरिया प्रिंसिपल। एरिया प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है वो सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। अब सबसे ज्यादा वेटेज तो हम्म फिजिक्स की है, 35, तो उसने सबसे ज्यादा एरिया भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये होता है एरिया प्रिंसिपल, एंड सबसे हाँ कम जिसकी है वो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो एरिया प्रिंसिपल तो ओबे कर। सही है हाँ, हाँ हाँ और भी कर रहे हैं ओके ओके तो फर्स्ट वाला इसलिए कर इनकरेक्ट है क्योंकि इट डज, नॉट ऑफ इट हाँ, तो ओबे करता है, दिस इज रॉन्ग। हाँ पाई चार्ट हैज राउंड ऑफ एरर्स,
तो ये आप ऐसे देख सकते हो, इसको पूरा ऐड करके 100% बनना चाहिए। 35 प्लस 12 हम्म, प्लस 18 प्लस, ये पूरा 100 होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, 100 बन रहा है ना? अगर 100 बन रहा है तो फिर देयर आर नो राउंड ऑफ एरर्स। बन रहा है बन रहा है, 100। राइट। तो इसलिए राउंड ऑफ एरर्स भी नहीं है। राउंड ऑफ एरर्स का मतलब है अगर 100 से कम या ज्यादा होता कुछ भी डेसिमल पॉइंट, तो फिर ये वाला होता राउंड ऑफ एरर, तो ये भी रॉन्ग है। अब सी पार्ट देखते हैं। पाई चार्ट इज नॉट मिसलीडिंग ग्राफ। हाँ, मिसलीडिंग नहीं है। एरिया प्रिंसिपल भी ओबे करता है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है उसकी सबसे ज्यादा एरिया है। एंड राउंड ऑफ एरर्स भी नहीं है। ये दोनों चीजें देखनी होती हैं। तो फिर मिसलीडिंग नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी होता तो ये मिसलीडिंग मिसलीडिंग हो जाता, इसलिए सी इज करेक्ट। स्लाइसेस एड अप टू 100%, हाँ ये हमने देखा, ये भी करेक्ट है। तो आंसर सी एंड डी इसलिए होता है। ठीक है, एनी डाउट? मैम फोर्थ ऑप्शन, द स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट एडिट्स अप टू 100%। हाँ तो 100% से हो सकता है। हाँ हाँ, ये देखो, हमने अभी सम किया ना इन सबका, टोटल हम्म, 100% आना चाहिए। एंड हमारा टोटल 100% ही आया। हाँ। मतलब हमने एक तरीके से परसेंटेजेस ऐड करी है यहाँ पे, ये परसेंटेजेस हैं, ऐड करके 100% आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है पाई चार्ट में, कि जो भी ये है वेटेजेस या डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐड करके 100% आना चाहिए पाई चार्ट में। ठीक है। अब टू लिखा है, एडिट्स अप टू 100, इसलिए मैंने सुना। वो क्यों लिखा? हाँ। हाँ, वो इसलिए पूछा है हमने, अगर 100% नहीं होता तो फिर हम लोग राउंड ऑफ एरर बोल देते, क्योंकि 100 से कम होता वो, फिर 100 से कम या 100 से ज्यादा होता तो राउंड ऑफ एरर हो जाता। तो ये इसका टोटल हमेशा 100% होना चाहिए। पाई चार्ट का जो भी परसेंटेजेस हैं, एड अप टू, एड अप टू का मतलब है कि ऐड करने पे 100 आना चाहिए। सो परसेंटेजेस एड अप टू, ओके, मेरे को लग रहा था उससे ऊपर 100 से अच्छा, एडिट्स अप टू। हाँ, ओके। अप टू का मतलब ओके। है कि 100% है एकदम। ओके। हाँ, तो सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक टेबल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 क्रिकेट प्लेयर्स ट्रेन बाय डिफरेंट क्रिकेट अकेडमीज। अब इसमें पूछा गया है, if each academy has trained at least one player, then based on the given information 4 5 6 7, what is the combined relative frequency of academy A, B and D? तो देखो, हाँ, तो टोटल जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं इसमें अकेडमी में, वो 200 दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, 200 क्रिकेट प्लेयर्स। सो मतलब कि हमारा टोटल, या फिर जो बड़ा एन होता है, ये फॉर्मूला है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, विच इज बिग एन, कैपिटल एन। सो दिस इज 200 रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अकेडमी सी और डी की हमें दी हुई है, क्योंकि ये देखो 50/200 कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर हम्म, सकते हैं हम 75/200। तो ये आता है 0.25, एंड ये वाला 0.375। अब हमें ए, बी एंड डी की निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। एक हमने सम पढ़ा, एक रूल पढ़ा था हमने, कि सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर ये जो भी इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ए, बी और डी की, सी और सी एंड डी हमें दिया हुआ है। 1 सेकेंड, इन्होंने कुछ गलत लिखा है, सी एंड ई दिया हुआ है, हमें निकालना ए, बी, डी का है।
तो ये सारे जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आर ए, आर बी, ये आर सी है, ये आर डी एंड आर ई, ये सारा ऐड करके 1 आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि इनका जो सम है, कंबाइंड पूछा है ना हमें, कि कंबाइंड का मतलब है आर ए प्लस आर बी प्लस आर डी, ये हमें पूछा हुआ है। तो कंबाइंड तो इजीली निकल सकती है। यहाँ से सी और ई की जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको ऐड करेंगे एंड वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.375। सो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा 0.375। यही था आंसर। हाँ मैम, आंसर तो ये, बट मेथड थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा बताओ। मतलब किया वही सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स को वैसे ही किया है, बट इज इक्वल टू 200 कर दिया। फिर ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू निकाली, 75 आई है। फिर 75 को 200 से डिवाइड किया, फिर 0.375 आया। अच्छा, आह, नाइस मेथड। हाँ, ये भी ठीक है ऐसे किया। ठीक है, बट ये भी एक अच्छा मेथड है, तो इसको भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को अभी जस्ट 1 सेकंड पहले पता चला है कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 होता है। तो पता ही अच्छा, नहीं था। ओ हाँ, लास्ट क्लास मिस हो गई थी ना, इसलिए शायद। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग देखी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना। अब मीडियन पूछा है, ओके, तो बताओ एक बार इसमें मेरे को प्रॉब्लम आई थी। हाँ, मीडियन में ही प्रॉब्लम आई थी, मैंने सोचा था आपसे पूछना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। E. यस, परफेक्ट, डी होगा, क्योंकि इसमें मीडियन नहीं हो सकता। मीडियन उसमें होता है जो कि ऑर्डर हो सकता है, और ऑर्डर सिर्फ हाँ, मेरे ऑर्डिनल को यही लगता था कि इसमें ऑर्डर तो है नहीं, मैं वही, कैसे निकालूं इसमें। हाँ। ओके, और एक ऑप्शन था मैंने देखा ही नहीं, सामने ही लिखा है। तो इसमें ऑर्डर नहीं हो सकता। मीडियन इज ओनली टेकन आउट क्लास फॉर चल रही। ऑर्डिनल डेटा, मतलब जिसमें ऑर्डर हो। सो ऑप्शन, 11 11। अब मोड, मोड तो निकाल ही सकते हैं हम लोग कि हाँ, 200 है। ऑप्शन बी, एकेडमी ई। अकेडमी ई, यस, वेरी गुड। तो आई थिंक ये भी क्लियर है, सबको क्लियर है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच एकेडमी। अब ये बताओ एक बार, क्या पाई आंसर है। चार्ट नहीं, बार चार्ट। Bacha. बार चार्ट दोनों का। हाँ हाँ। ओके, लेट्स चेक। अच्छा, बार चार्ट इज सेम एज परेटो चार्ट। मतलब परेटो चार्ट में तो बस यही होता है ना, बार चार्ट होता है ऐसे, कोई भी ऑर्डर से लगा देता है। अब जो परेटो चार्ट होगा उसमें जो मोड है या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है वो आगे आएगा, उसके पीछे आएगा लोअर, एंड ऐसे डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, वैसे मोस्टली डिसेंडिंग में, कि ताकि आगे सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बार आए। ये तो पता है ना, परेटो ओके, चार्ट, ये बार चार्ट है एंड ये परेटो चार्ट है। Am I audible? हाँ, यस मैम। Okay, okay. So option D is correct here, both bar chart and Pareto chart. हाँ तो अगर कुछ गलत ऑप्शन सिलेक्ट करा है तो वो करेक्ट कर लो, एंड मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगी। हाँ, कर लिया है। ओके, गुड, ठीक है। द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शेयरिंग सेम रैंक इज कलेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्शन सूटेड। डी। ऑप्शन डी, ओके, एंड आर्यन, डी है इसमें।
इसमें तो ऑप्शन डी है ही नहीं। मेरे में नहीं, सॉरी, सी, मैंने सी लगाया, ए बी अच्छा सी। अच्छा। ओके एंड आर्यन, आपने इतना क्या गलत क्यों, कैसा होगा मेरे सिलेक्शन? हो जाएगा, इजी है बहुत, समझा देती हूँ मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सूटेबल। ये पहला हाँ, मिसलीडिंग है। यस, वेरी गुड, पहला वाला मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग, हाँ। मिसिंग बेसलाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मिसिंग बेसलाइन मैंने समझाया था, यहाँ नीचे देखना होता है, ये हमेशा, हाँ, जीरो से start। यस, जीरो से स्टार्ट, दिस शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ये देखा, ये मिसिंग बेसलाइन बोलते हैं इसको, मिसिंग बेसलाइन। तो ये वाला तो मिसलीडिंग है। अब हम लोग बी देखते हैं एक बार। बी में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, यस। सो बी में कोई भी मिसलीडिंग चीज नहीं है, बी इज परफेक्ट। सी देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये देखो। सी में भी जीरो से स्टार्ट था। सी में हाँ, सी ऑर्डर में सी। ऑर्डर ऑर्डर। यस, अच्छा, हाँ ऑर्डर ऑफ हाँ, कैटेगरी। ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर बताया था ना ऑर्डर कि इसमें थर्ड पहले आ। हाँ, बार चार्ट जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डिनल कैटेगरी जो होती है, जैसे रैंकिंग है ना, तो ये तो ऑर्डिनल है। हाँ हाँ, ऑर्डर शुड, अंडरस्टूड मैं। हाँ, ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, हम्म। इसलिए सी भी गलत है। सो आंसर है बी। बी। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आई मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा हैव मेजरमेंट यूनिट्स। बी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, बी है इसका आंसर, मेजरमेंट यूनिट्स तो होते ही नहीं इसमें। Categorical data can take numerical values, but no meaningful mathematical operations can be performed. हाँ, ये ठीक है। ये, हाँ। मतलब कि जेंडर जो है उसमें अगर आपका यहाँ पे लिखा भी है मेल एंड फीमेल, तो उसको आप लोग 0 और 1 या कुछ भी ऐसे दे सकते हो, बट इस पे कोई ऑपरेशन या परफॉर्म हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। कैटेगोरिकल डेटा इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, नहीं, क्वालिटेटिव नहीं, होता क्वालिटेटिव। है। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं। सो बी इज द करेक्ट वन। अब 11 क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे अब एक ये पाई चार्ट है, इसमें 80 स्टूडेंट्स है, तो ये ना हाईलाइट कर लिया करो, या फिर मैंने जब एग्जाम दिया था मैं इसको नोट कर लेती थी, हमें रफ शीट्स देती है ना उस पे, तो इसको नोट कर लेती थी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड बी ग्रेड, तो उसके बाद बी ग्रेड का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, 32.5%। 32.5। यस, बी ग्रेड। अब मैम, इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, टू मैं सिक्सटी 32.5 अपॉन 100 इंटू 80 करेंगे, इससे आंसर आएगा, एंड आंसर है 26। आई थिंक कोई जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। हाँ, एक बार चेक कर लो। छोटा छोटा लगता है। हाँ, क्या? ये देखो, 32.5 अपॉन 100, ये होता है परसेंटेज, इंटू 80 टोटल, इसको कैलकुलेट करके 26 आएगा। ठीक है, आर्यन आपका सेम था। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, अब लास्ट वाला बहुत इजी है, सिक्योर्ड सी ग्रेड, ए ग्रेड। 6। रेशो का मतलब है कि जिन्होंने सी लाए हैं अपॉन जो लोग ए लाए हैं। ये करेक्ट है, 0.9। हाँ, बिल्कुल। तो सी ग्रेड वाले कौन है, 22.5, तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू ए 80। फिर ए का करेंगे, फिर रेशियो लो। यस, वेरी गुड। फिर ए का कर लेंगे 25 अपॉन 100 इंटू 80। इनकी वैल्यूज ऐसे आएंगी, 18, सी के 18 है एंड ए के 20 है,
इसका रेशो निकाल के यहाँ पे आंसर 0.9 आएगा। आंसर होना चाहिए 0.9। ठीक है, सो गुड जॉब एवरीवन। कितने करेक्ट हुए? 5। सभी करेक्ट है मैम। वाओ चलो, गुड जॉब टू बोथ ऑफ यू, वेल डन। मैम पीवाईक्यू और आई पीवाईक्यू। हाँ, पीवाईक्यू वाली पीडीएफ ये मैं ऐसे ही एनोटेटेड पीडीएफ शेयर कर दूंगी क्योंकि अब ये सेव हो गई है। ओके, ये है पीवाईक्यू पीडीएफ एंड आई थिंक इसमें सबके अराउंड 6, 7, 5 ऐसे आए थे। तो बताओ इसमें क्या डाउट्स है? मैम नीचे स्क्रॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8। ऑप्शन डी कर। हाँ यस मैम। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट बट यस यस इट इज करेक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। डी डी अच्छा सॉरी, मीडियन सो कैन सॉरी। बी। Median can be measured for categorical variable only if variable is nominal. नहीं, variable should be ordinal, है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर करना पड़ता है डेटा पहले मीडियन के लिए, है ना। तो एक और ऐसा क्वेश्चन था ना अभी जीए में, सो इट शुड बी ऑर्डर्ड डेटा, है ना। मीडियन के लिए पहले अरेंज किया जाता है डेटा, उसके बाद निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके ओके, हाँ। सो मीडियन कैन बी मेजर्ड ओनली इफ इट इज यहाँ पे ये ऑर्डिनल होगा, फिर नॉमिनल में नहीं होता, ऑर्डिनल में। और एनी अदर डाउट? मैम मेरा 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो आर्यन आपको है इनमें से 8 भी है? 8 तो कराया अभी ठीक है, नहीं मैम, और देख लिया आंसर तो समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। चलो एक बार मैं ये 5, 6, 7, 8, 9 करा देती हूँ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द गिवन पाई चार्ट। सो इसमें मोड है सोलर एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी का सबसे वाइडेस्ट स्लाइस है ना, तो ये होगा मोड। देन मीडियन ऑफ द डेटा इज विंड एनर्जी। तो यहाँ पे मीडियन निकल सकता है क्या? नो मैम, यस, कैन बिकॉज नॉट डिफाइन। या वेरी गुड, ऑर्डिनल नहीं है इसलिए मीडियन नहीं होगा। सो बी इज इनकरेक्ट और इनवैलिड। Combined consumption of hydro, biomass, and geothermal energy is more than wind energy. So, hydro, biomass, and geothermal. Yellow, green, and orange. हाँ, स्लाइस को देख लो। 1/3 हाँ, इस वाले में तो नहीं डाउट है, वरना मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ। मैम मीडियन में, और मैम ये जो लिखा है फेयर एक्सलेंट पुअर, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें ऑर्डर देते नहीं, कैसे हम मीडियन निकाल दें? क्वेश्चन नंबर 1 में हाँ, इसमें तो ऑर्डर है, इसमें एक ऑर्डर है ऐसे कैसे फाइंड करें? पुअर से फेयर से एक्सीलेंट, ये है ऑर्डर। ये तो ऑर्डिनल डेटा है ना, जो रिव्यूज होते हैं या ऐसा कुछ तो होता है। मैम, तो ऐसे भी तो हो सकता है एक्सलेंट पुअर फेयर, कैसे हमें पता चलेगा कि यही है? ऑर्डर कोई भी यूज कर सकते हो, एक बार मैं ट्राई करके भी दिखा मतलब देती इसमें हम ऑर्डर ऑर्डर बना सकते हैं ऐसा? हूँ। हाँ,
ये देखो, अगर मैं ये असेंडिंग ऑर्डर करूं, पुअर 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 पुअर, देन 3 फेयर है, एंड देन 1 2 3, 3 एक्सीलेंट है। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, एंड यहाँ पे दोनों फेयर है, तो फिर मीडियन शुड बी फेयर। तो यहाँ पे मीडियन क्या दिया है? फेयर है, राइट। वैसे अगर आपको ऑर्डर करना है तो असेंडिंग ऑर्डर ही करो, डिसेंडिंग में मत किया करो, असेंडिंग इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली ऐसे मैम, ऑर्डिनल का क्वेश्चन हो तो। हाँ, जैसे कि आपने ये ऑर्डर बताया पुअर पुअर, इसके बाद में फेयर एक्सलेंट। तो फेयर एक्सलेंट तीन तीन दोनों तीन तीन है, तो अगर एक्सलेंट को बीच में ले तो एक्सलेंट आ जाएगा फिर मीन उसका। तो हाँ, फिर अगर हम एक्सलेंट करते हैं तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, बट एक्सीलेंट क्यों बीच में लाएंगे? इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों तीन है ना। आपने बोला ना कि हम कोई भी ऑर्डर बना सकते हैं। नहीं, नहीं, ऑर्डर वैसे नहीं होता है। ऑर्डर है ये ऑर्डर है। मैं नंबर से नहीं बता रही हूँ कि कितने नंबर हैं वो। पुअर पुअर का मतलब है लो, तो मतलब ये ऑर्डिनल डेटा होता है, पुअर में लो, लो रेटिंग्स, फेयर बीच का, एंड एक्सीलेंट टॉप। तो ये होता है ऑर्डिनल डेटा में, ऐसे ऑर्डर आता है, एंड इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो इस तरह से ऑर्डर देखना होता है, जैसे अगर ये भी होता, बैड, गुड, यहाँ पे वेरी बैड भी है। वेरी गुड। हाँ, और यहाँ पे वेरी गुड। तो ये होते अगर, तो पहले हम लोग वेरी बैड वाले लेते, जितने भी होंगे सारे लिख लेते, उसके बाद बैड वाले लेते, उसके बाद सारे गुड वाले, एंड उसके बाद वेरी गुड गुड वाले। वेरी गुड है। यस, और हाँ, फिर अंडरस्टूड। मीडियन निकालेंगे। राइट। ठीक है। और कहाँ था? फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। हाँ, तो ये तो आज मैंने क्लियर कर दिया ना, इसमें होगा शायद डाउट। एड अप टू। हाँ। ठीक है। तो एड अप टू मतलब है इनका टोटल करो एंड 100% आना चाहिए, दिस इज अ रूल। स्लाइस जो होते हैं पाई चार्ट के, उसमें 100% टोटल आना चाहिए। एंड एरिया प्रिंसिपल मतलब कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो वेटेज भी बड़ा होना वो चाहिए। 3 नंबर होना चाहिए। हाँ, और मोड है गुआवा, क्योंकि गुआवा का हाईएस्ट परसेंटेज है। ठीक है। हम्म। सुनिधि परचेज्ड 5 टी-शर्ट्स ऑफ साइजेस मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, स्मॉल। तो इसको मुझे लगता है ये ऑर्डर करना पड़ेगा पहले तो स्मॉल स्मॉल, बताओ एक बार आगे। मीडियम, यस, लार्ज, एक्सेल। वेरी गुड। तो ऐसे हमने ऑर्डर कर लिया। मीडियन ऑफ द डेटा इज, हाँ, अच्छा, लेटर शी परचेज वन मोर टी शर्ट ऑफ साइज मीडियम। तो नेक्स्ट हम तो लोग लिख, मिड में डाल। हाँ, हाँ, मीडियन निकालते हैं दोनों का। ऊपर वाले का मीडियन क्या होगा? मीडियम और लार्ज, मीडियम। एमएल। जो बीच में होता है वो मीडियन होता है। ओके। हाँ, मतलब, 5 + 6 2 3। यस। एंड हाँ, इसमें देखो, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, डबल एम। दोनों एम है, तो फिर मतलब कि मीडियम में हाँ। से ही कोई होगा, तो मतलब कि दोनों जो है डेटा उनका सेम है, मीडियम एंड मीडियम। हम्म। सो दिस करेक्ट, सेम है ओल्ड डेटा से। न्यू डेटा इस विल बी ओके। बाय मॉडल। हाँ, बाय मॉडल तो है, क्योंकि इसमें स्मॉल भी 2 बार आ रहा है न्यू डेटा में, ये न्यू डेटा, एंड मीडियम भी 2 बार आ रहा है। दिस इज नोन एज बाय मॉडल, जिसके 2 मोड्स हो। ठीक है। ओके। हाँ, 8th भी हो गया, 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एज द मोड? अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो डेटा है, ये यूनी मॉडल है या बाय मॉडल?
कोई भी बता सकता है। बाई मॉडल। यस, वेरी गुड। एंड दोनों मोड्स क्या है? एक रेड वाला है और ब्लू वाला दिख नहीं रहा मैम परसेंटेज। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट वेरी गुड। ये दोनों मोड्स हैं क्योंकि इनका सेम परसेंटेज है। एंड इसमें विच वन कांट बी द मोड, ये पूछा है। नो मैम। ग्रीन वाला। ग्रीन वाला है, बट ग्रीन वाला ऑप्शन गिवन नहीं है कंसल्टेंट। अगर दिया होता तो ग्रीन वाला आंसर होता, बट जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कोर का लोएस्ट है, तो कोर मोड नहीं हो सकता। ऑप्शंस के हिसाब से देना आंसर। अगर ऑप्शन में ग्रीन कंसल्ट, वाले। हाँ अ, हाँ, तो अगर ग्रीन वाला मेंशन्ड होता है यहाँ, अगर ऑप्शंस में होता है ई करके कंसल्टेंट, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये ग्रीन वाला जो है ये कंसल्टेंट है, ये देखो। हम्म, तो अगर ये कंसल्टेंट ये होता ऑप्शन में ऑप्शन, नहीं है। हाँ अगर ऑप्शन में होता तो आंसर होता, बट ऑप्शन में नहीं है तो इससे एक ऊपर वाला जो है वो ही आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन में तो मैम दोनों करेक्ट करते हैं क्योंकि ऑप्शन, हाँ ऑप्शन होता तो फिर दोनों करेक्ट होते। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन बन जाता, इसलिए शायद उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं। एंड हो गया होगा फिर तो। ये 9 तक डाउट्स थे। क्लियर? यस मैम, जो व्हाट्सएप पे भेजे हैं एक बार वो। हाँ, वो मैं एक बार एक और मीटिंग लिंक भेजती हूँ। एक बार इसको बंद कर देते हैं, ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी, फिर अपलोड कर दूंगी उधर। मैम एक बार बाई मॉडल का मेन दोबारा बता दीजिए। हाँ, बाय मॉडल का मतलब है, जैसे अगर मैं ग्राफ बना के समझाऊं, बार ग्राफ। ऐसे बार ग्राफ दिया रहता है एंड नीचे कुछ भी वैल्यूज होती है, अभी मैं एबीसी रख देती हूँ। इसमें हमें दिख रहा है कि बी और सी का सेम लेवल है। एंड जो हाईएस्ट होता है, जो हाईएस्ट बार होता है, लॉन्गेस्ट बार, उसको ही मोड बोलते हैं। बट इसमें दो दो दिख रहे हैं। अगर दो दिखेंगे तो बाई मॉडल होगा। बाई मॉडल। हाँ, अब अंडरस्टूड। वन दिखेगा तो यूनी मॉडल। और एंड उस जो पाई चार्ट था उसमें जो पाई चार्ट था उसमें दो का दिख रहा था सेम, हाँ, इसलिए वो बाई मॉडल था। इसलिए बाई मॉडल है क्योंकि दोनों का सेम है एंड दोनों का हाईएस्ट है। 30% इज द हाईएस्ट एंड 30% दो का है। दो, ब्लू का भी है, रेड का भी है, तो इसलिए बाई मॉडल है। ठीक है, अंडरस्टूड। वेरी, चलो। अब मैं ये एक बार एंड करती हूँ, वैसे ही 1 मिनट लेफ्ट है। उसके बाद मैं मीटिंग लिंक भेजती हूँ एक और। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई शेयर द लिंक। बाय।